Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is your girl Arpita. I'm back with another video. In this video, we are going to discuss about what are the documents that you need to carry with yourself. कौन कौन से documents लेके आने हैं आपको जब आपको admission हो जाता है किसी भी कॉलेज में, या सपोज मेरे वैद्यरत्नम कॉलेज में, किसी भी BMS कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको लेके जाने, एंड विदाउट डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली आपका एडमिशन नहीं होगा. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपका मिस हो जाता है तो मे बी इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस. So in this video we are going to cover all the important documents that you should carry, that you must carry while going for any admission in any college. So suppose I'll take an example of BMS student. Suppose a BMS student or any student who got elected in my college. Okay, I'll give you like, and then note the documents, not the story, note the documents and write it. So suppose anybody who comes to my college and got selected in my college, then what are the things that you need to do? So I am a BMS student. I am a student who appeared in NEET. After appearing in NEET, I got selected in a college. Then I got allotment letter. Then I come to a college to give my all the documents. Then I got admission in my college. Then I further started. Then after certain days or few months, like 2 months, then I come to my college regular classes. This is all odd thing happens to me. So what are the documents in that particular period of time I have submitted, and I have submitted so to get the easy admission, not any such problem कि मुझे यहाँ दौड़ भाग करनी पड़ रही है कुछ ऐसा. तो हम क्या करेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कैरी विद योर सेल्फ इज नीट स्कोर कार्ड. अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो जेई का स्कोर कार्ड, नीट के स्टूडेंट हो तो नीट स्कोर कार्ड. देन योर अलॉटमेंट लेटर. ओके, देन योर अलॉटमेंट लेटर. अलॉटमेंट लेटर निकाल लिया, नीट का स्कोर कार्ड या जेई का स्कोर कार्ड लिया, वो ले लिया आपने, उसका प्रिंट करके साथ एक एक कॉपी रखते जाओ, ठीक है. विल ऑन द सेफर साइड टेक 1 कॉपी विथ योर सेल्फ. देन आप ऑब्वियसली 12th के बाद ही नीट और जेई का एग्ज़ाम दे सकते हो. तो आपको 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट लेके आनी है. ओके, यू हैव टू ब्रिंग दैट 10th and 12th mark sheet, original documents. I'm talking about 10th and 12th original document that you have to carry with yourself. Then you have to carry, after when you pass out from your 12th, you are given the transfer certificate, TC called TC. आपको TC मिलती है तो आपको वो लेके जाना है. Okay, 3 documents as I told you: allotment letter, score card, 12th mark sheet, 10th mark sheet, and then transfer certificate. You have also given your character certificate. Most of the college ask for that also. Okay, then suppose you are somebody who passed in 2023 or 2021 and you are selected in a college, like you are a dropper, और आपने नीट के लिए ड्रॉप किया था, या आपने जेई के लिए ड्रॉप किया था, या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपने ड्रॉप किया था, आप कुछ कर रहे थे, तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लो. मेक अ गैप सर्टिफिकेट विथ योर सेल्फ एज वेल फॉर द सेफर साइड. ओके, देन यू आर फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है. देन गो फॉर योर कैटेगरी सर्टिफिकेट लाइक SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट. इफ यू आर अंडर EWS, मेक योर EWS रिजर्वेशन दैट सर्टिफिकेट विद योर सेल्फ. यू आर फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट. सपोज आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम लखनऊ. सो मेरा स्टेट डोमिसाइल है, मैं वो लेके गई थी जब मैं अपने ऑल इंडिया के एडमिशन के टाइम पे गई थी. दैट विल बी ऑल्सो सबमिटेड बाय योर टू योर कॉलेज बाय यू, and that's not submitted for 1 or 2 days. It's submitted for all the time of your degree or of your course. That all things, as I told you. Then the thing that you need to carry with yourself is your passport size photos. कभी भी एक फ़ोटो लेके मत जाया करो. Go for 4-5 photos. Go for the safer side. Okay, when you carry photos with yourself, do not forget to carry the glue with you. Like वहाँ पे कभी कभी ग्लू नहीं होता, you are just going here and there, जो भी. तो प्लीज़ अपने साइड से, आपका सपना पूरा हुआ है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, या फिर आप IIT करने जा रहे हो, या फिर आप आपका फेवरेट कॉलेज मिला है, और आप कोई भी गलती मत करो, ठीक है. तो अपने साइड से बिल्कुल सेफ चलो. तो ग्लू रख लो अपने साथ, और उसके बाद देन टेक योर आधार कार्ड. ऑब्वियसली आपका आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड लेके जाओ, उसकी फ़ोटोकॉपी, उसकी आप फ़ोटोकॉपी रख लो, पैन कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी रख लो. देन यू कम टू अ कॉलेज. ओके, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स. ओके, in my college, very specifically, I know about this about my college. If you have another, then go through that website of the college. In my college, when you come to my college, Vaidyaratnam Ayurveda Medical College, what you have to do is you have to go to the site of Vaidyaratnam Ayurveda Medical College. Just you Google it, and the first site that comes, Vaidyaratnam, also click on it. Then at that particular admission time or reporting time, there will be an announcement section. There will be a format of admission, like क्या क्या कर लेके आना है. तो उसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है.
उसको डाउनलोड करना है और उसको जाके MBBS डॉक्टर के पास, MBBS हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से डॉक्टर की प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें जो भी चीज़ें पूछी गई हैं वो फिल करवाना है, डॉक्टर साइन करेगा, फिर पार्टिकुलर्स पे स्टैंप लगेगी। मैं ये लेके नहीं गई थी क्योंकि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, मेरे को नहीं पता था। और बीइंग अ लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑल्सो, अगर मैं बोलूँ या फिर पता नहीं क्यों मैं बात करती, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मैं लेके गई थी मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन उस फॉर्मेट का नहीं था जिसकी वजह से वो प्रोसीड नहीं हो पा रहा था। तो फिर मेरे को वहाँ पे बताया गया कि ये पहले मैं बता देती हूँ कि लेके जाओ। सपोज़ आप लेके नहीं आए तो वो मैं भी वो भी बताती हूँ मैं कि अगर सपोज़ वहाँ पे हो और आप लेके नहीं आए हो तो फिर क्या करना है आपको। तो फर्स्ट आप उस फॉर्मेट का लेके जाओ, और that's very very important. So where you have to go to my college website and then go to the announcement section. वहाँ पे फर्स्ट ईयर BMS के जो एडमिशन हो रहा होगा करंट ईयर, सपोज 2025 एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में फॉर्मेट आ जाता है। उसको फॉर्मेट को डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकलवाओ, उसको फिल करवाओ, उसको अपने साथ रख के लेके चलो, ठीक है। तो रिजल्ट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, फोटोज़ हो गई, मैंने पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ बोल दी, सॉरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ बोल दी, ग्लू बोल दिया, देन आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी। देन इफ़ यू आर ड्रॉपर तो आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लो, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, आपने EWS के वो किया है तो EWS सर्टिफिकेट, एंड देन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दैट इज़ TC। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज के साइड से मिलता है, उसको बनवाने की जरूरत नहीं। हर कॉलेज आपको छोटा सा आप एक देखना उसमें लिखा होता है दिस द कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज दिस इज इट, वो हर कॉलेज देता है, ठीक है। देन एज आई टोल्ड यू इन माई कॉलेज देयर स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, उसमें आपकी हाइट वेट दी जाती है और प्रॉपर स्टैम्प होता है मेडिकल MBBS कॉलेज की तरफ से, वो आपको उस फॉर्मेट से लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद ऑन द डे ऑफ एडमिशन देन यू गो टू माई कॉलेज, सपोज यू कम टू माई कॉलेज, आप वैद्यनाथ में आ गए, आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओ, it will take 20-30 minutes, not more than that if you have all the documents with you. Okay, so you come to my college, you go to the reception, or not reception, sorry, you go to the office where you will go and meet a person. He will give you one sheet, one proper sheet will be there of 4 or 5 pages. वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो डॉक्यूमेंट्स उसमें डिटेल्स पूछी जाएंगी वो सब आपको फिल करना है, आपको फ़ोटोज़ पोस्ट करनी है, एंड अपना नीट स्कोर कार्ड, आपका उसमें रैंक क्या आई थी, आपका नाम क्या है, आपका ये क्या है, आपका वो क्या है, ऑल दिस थिंग्स, आप कहाँ से हो, ये सब चीज़ें उसको फिल करनी है। उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिर सबमिट करना है। उसके बाद आपके एक टीचर आएंगे आपके साथ जो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको विश करेंगे ऑल द बेस्ट, एंड दैट थिंग हैज़ हैपेंड विद मी, एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ 20-30 minutes. ओके, वन थिंग दैट आई लाइक टू टेल यू इज दिस, सपोज आपका एडमिशन आज आपको अलॉटमेंट लेटर आया, ऐसा मत करो कि लास्ट डेज के लिए छोड़ दो, कि लास्ट डेज के लिए, क्योंकि मेरे को जो फर्स्ट चीज़ बोली गई थी, मैंने फ़ोन करके पूछा क्योंकि मैं यहाँ की हूँ उत्तर प्रदेश की, मुझे केरल जाना था, लाइक ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम, तो वहाँ से वापस आने का भी कोई चांस नहीं, तो मुझे बहुत डर लग रहा था ऐसा ना हो कुछ छूट जाए। मेरे पापा भी बहुत एकदम टेंशन में थे कि कुछ सब कुछ रख लेना, भूलना मत एंड ऑल, तो मेरे को डर लग रहा था। तो अगर आप भी ऐसे करो, सपोज आप नॉर्थ इंडियन हो, आप जहाँ से जा रही हो, या फिर आप कोई साउथ इंडियन हो, आप इधर आ रहे हो, तो मेक श्योर टू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद यू, बिकॉज तुरंत वापस जाने का टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है ऊपर से अलॉटमेंट जो रिपोर्टिंग टाइम है बहुत कम है, 7 days। अगर मैं ट्रेन से गई थी तो मेरे को 2 दिन ट्रेन से जाने में लग गया था। तो कभी ऐसा मत करो कि लास्ट डे मिस कर देंगे। उन्होंने मुझे पहली चीज़ बोली फ़ोन पे कि लास्ट में मिस मत करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि साइट नहीं चलती, अब रिपोर्टिंग टाइम चला भी गया है और साइट भी नहीं चल रही, आपकी गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको भुगतना पड़ सकता है, हो सकता है आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो मेक श्योर बी अलर्ट विद ऑल दिस थिंग्स and do not forget to carry all these things, and on the same day itself when you come for your admission, do ask about the hostel facilities. आपको hostel facilities के बारे में पूछो। उसके बाद ये पूछो कि अब आपकी रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, they will let you know according to that. Suppose if on that particular time they didn't inform you, like they were not sure, they will not aware about it, so they will definitely, my Vaidyatnam college will definitely post on their site the classes, regular classes of this in particular batch. Suppose 2025 में बच्चा भी आ रहा है, आप आ रहे हो, और अभी आपकी 2025 की क्लासेस स्टार्ट, सपोज एडमिशन आपका अभी हो गया, आज के डेट पे हो गया, लेकिन अब आपको पता नहीं कि क्लासेस होंगी, तो आपके वैद्यरत्नम की साइट पे आ जाएगा कि 2025 की फर्स्ट ईयर रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, प्रॉपर फॉर्मेट आ जाएगा, यू कैन चेक, मतलब रेगुलरली उसको चेक करते रहो, उसमें सारी अपडेट्स आ जाती हैं। वहाँ से आप कॉल करके पता भी कर सकते हो अगर आपको कोई और दिक्कत है तो। इफ़ यू हैव एनी सच प्रॉब्लम्स यू कैन ऑल्सो कमेंट टू माई यूट्यूब सेक्शन, और you can message on my Insta as well. I will try to inform you on the same day itself. I hope this video was useful enough. Thank you so much. If you like this video, if you found it useful, do not forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Till then, keep growing, keep glowing. Bye.